سانحہ سیالکوٹ کی تازہ تفصیلات کی خبر سے سیالکوٹ واقعے میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں قتل ہونے والے سری لنکن شہری کی میت سری لنکا منتقل کرنے کے انتظامات کی تیاریاں جاری ہیں۔ سری لنکن ہائی کمشنر کہتے ہیں کہ میت لاہور سے کولمبو منتقل کی جائے گی۔ پاکستانی سیکریٹری خارجہ نے سری لنکن باشندوں کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ سیالکوٹ فیکٹری کے سری لنکن مینیجر پرانتھا کمار کو گزشتہ روز مشتعل ہجوم نے توہین مذہب کا مبینہ الزام لگا کر بدترین تشدد کر کے مار ڈالا تھا، لاش بھی جلا دی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق پرانتھا کمار کے جسم کا زیادہ تر حصہ جھلس چکا ہے۔ میت آج خصوصی پرواز کے ذریعے سری لنکا بھیجی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا سری لنکن صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ فیکٹری مینیجر قتل کیس میں 100 افراد کو گرفتار کر چکے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا، سری لنکا کے صدر کو یقین دلایا کہ قانون پر عمل درآمد ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے اور سری لنکن صدر کو انہوں نے یقین دلایا کہ قانون پر عمل درآمد ہوگا۔ سری لنکا کے صدر کو یقین دلایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے فیکٹری مینیجر قتل کیس میں 100 افراد کو گرفتار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے فیکٹری مینیجر قتل کیس میں 100 افراد کو گرفتار کر چکے۔ انہوں نے سری لنکا کے صدر کو یقین دلایا کہ قانون پر عمل درآمد ہوگا۔ سیالکوٹ واقعے کی پولیس کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ پولیس نے اب تک 200 مقامات پر چھاپے مار کر 118 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ 13 مرکزی ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ 12 گھنٹے پر مشتمل 160 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج نکال لی گئی اور فورنسک تجزیہ اور موبائل فوٹیج کا تجزیہ بھی اس وقت جاری ہے۔ درج کی گئی ایف آئی آر میں 7A اور دفعہ 302، 297 اور 201 سمیت 427 شامل کی گئی ہیں۔ سیالکوٹ میں مشتعل افراد کے ہاتھوں سری لنکن شہری کی ہلاکت پر پولیس کے درجنوں مقامات پر چھاپے، 2 مرکزی ملزمان سمیت 120 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ 800 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقتول کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا، جسم کا زیادہ تر حصہ جھلسا ہوا اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ سیالکوٹ سے محمد بلال خان کی رپورٹ۔ سیالکوٹ وزیرآباد روڈ پر مشتعل ہجوم کے ہاتھوں سری لنکن مینیجر کی ہلاکت۔ پولیس کی جانب سے 50 سے زائد چھاپے، 2 مرکزی ملزمان سمیت 120 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ویڈیوز کی مدد سے مزید ملزمان کی نشاندہی کے بعد گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس نے مقدمے میں 800 افراد کو نامزد کر دیا ہے۔ ایف آئی آر میں قتل، انسداد دہشت گردی سمیت سنگین جرائم کی 9 دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقتول پرینتھا کمار کا پوسٹ مارٹم بھی مکمل کر لیا گیا۔ سری لنکن شہری کے جسم کا زیادہ تر حصہ جھلس گیا ہے، جبکہ ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی پائی گئیں۔ ذرائع کے مطابق پرینتھا کمار کی لاش خصوصی پرواز کے ذریعے سری لنکا بھیجی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سیالکوٹ واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، سر شرم سے جھک گیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی آج پاکستان سے بہتر ہے، اشیاء مہنگی امپورٹ ہوں گی تو غریب مارا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا فیصلہ 6 دسمبر کو کیا جائے گا۔ کوٹ میں جو واقعہ ہوا وہ انتہائی غمناک اور دلخراش واقعہ ہے۔ پوری قوم کا شرم سے سر جھک گیا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جو بھی اس میں افراد ملوث پائے گئے وہ قانون کے مطابق ان کو قرارگاہ کی سزا دی جائے گی۔ پاکستان کے اندر آج جو معاشی صورتحال ہے وہ بدقسمتی سے انتہائی خراب ہے اور اس وقت عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ تو یہ لانگ مارچ بالکل پی ڈی ایم بڑا ایکٹیولی اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ 6 تاریخ کو ہماری
मीटिंग है और 6 तारीख को इसमें इंशाअल्लाह अपना गुफ्तगू होगी और ठोस फैसले होंगे इंशाअल्लाह। अब पाकिस्तान और पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते। आज बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो 320 बिलियन डॉलर है और हमारी जीडीपी जो है वो 270 या 272 अरब के इर्द गिर्द घूम रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि सियालकोट वाक़े के बाद 200 छापे मारे गए हैं। गिरफ्तार अफराद में 13 मरकजी मुल्जिमान भी शामिल हैं। सियालकोट वाक़े पर मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सियालकोट वाक़े की निगरानी कर रहे हैं। वाक़े को मिसाल बनाना है ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। 24 घंटे के अंदर 200 रेड्स हो चुकी हैं और डीपीओ सियालकोट ने 10 टीमें तश्कील दी जिन्होंने छापे मारे और 200 रेड्स हो चुकी हैं। 118 लोगों को अभी तक ज़ेरे हिरासत लिया जा चुका है और उस पर जो 13 मेन इसके मरकज़ी किरदार हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कल आपको बताया गया था कि सीसीटीवी फुटेज को रिट्रीव किया जा रहा है। ये 160 कैमरों से ये फुटेज ली गई जो 12 घंटे की फुटेज थी और पुलिस ने इसको भी देखा है और इसकी मदद भी ली है इन मुल्ज़िमान की शनाख्त में और उनकी गिरफ्तारी में कि ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। इस केस को ऊपर से वज़ीर आज़म वज़ीर आला खुद मॉनिटर कर रहे हैं और किसी शख्स के कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उलमाए कराम ने भी सियालकोट वाक़े की शदीद मज़म्मत कर दी है। कहा ऐसे वाक़यात से अनारकी और लाक़ानूनियत फैलती है। मारूफ उलमाए कराम भी यक ज़ुबान सियालकोट वाक़े की शदीद मज़म्मत कर दी। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने कहा इल्ज़ाम की बुनियाद पर कानून को हाथ में लेना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा मुल्क में आईनी और कानूनी निज़ाम मौजूद है। सियालकोट जैसे वाक़यात से अनारकी और लाक़ानूनियत फैलती है। पाकिस्तान पर कई बरसों से FATF की तलवार लटक रही है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है तौहीन रिसालत इंतहाई संगीन जुर्म है लेकिन मुल्जिम से इसके इर्तिकाब के सबूत भी उतने ही मजबूत होना जरूरी है। किसी पर भी तौहीन रिसालत का संगीन इल्जाम लगाकर खुद ही उसे वहशियाना और हराम तरीके से सजा देने का कोई जवाज नहीं। सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भौंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क को मिल्लत को बदनाम किया। मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की तंजीमों के तहत सियालकोट वाक़े के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने वाक़े में मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं देने का मुतालिबा किया। सानिह सियालकोट के खिलाफ इंसानी हुकूक की तंजीमें सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के सामने इंसानी हुकूक से मुताल्लिक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का सियालकोट वाक़े के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने सियालकोट वाक़े में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं देने का मुतालिबा किया। अदालतें मौजूद है, यहाँ पे पूरा सिस्टम मौजूद है, क्या हम उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि अगर कोई इस तरह का केस वाकया हुआ भी है तो उसको कटेरे पे लाया जाए, खड़ा किया जाए ताकि आइंदा इस तरह की चीजें ना हो। इसकी रोकथाम की जाए। हुकूमत से मुतालबा है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाए। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठाकर वाक़े में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ शदीद नारे लगाए। और कराची के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज में नेशनल स्टेडियम में 100% तमाशाइयों को मैच देखने की इजाजत मिल गई। T20 सीरीज के लिए 250 से 2000 रुपए के टिकट्स रखे गए हैं। T20 सीरीज के टिकट्स ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। टिकट्स निजी कंपनी के दफातर से हासिल किए जा सकेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी भी आ गई है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब मौसूल हो गए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना को सऊदी अरब ने $3 अरब के हवाले से उन्होंने तस्दीक भी की। लिखा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने $3 अरब दे दिए हैं। सऊदी शहजादा मोहम्मद सलमान का खैर सगाली पर शुक्रिया अदा करते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक $3 अरब मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते ही मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होने लगे। चंद रोज कबल सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट स्टेट बैंक के दरमियान $3 अरब कर्ज डिपॉजिट मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत सऊदी फंड को स्टेट बैंक के पास $3 अरब रखवाने थे जो स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा होंगे। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि 5 शहरों में कुछ खानदानों का कब्जा रहा है। इस्लामाबाद के हर शहरी को सेहत कार्ड में तरक्याती काम 18 माह में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। रवां साल वफाकी दारुल हुकूमत को रावल झील में यौमिया 20 लाख गैलन पानी ज्यादा मिला। मारगला एवेन्यू का काम 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा।
5 मुख्तलिफ शहर हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की तारीख के अंदर चंद खानदानों का मुकम्मल कब्जा रहा है। आपको कोई वहां पर महंगे टेस्ट कराने पड़ते हैं, कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो साल के अंदर हर खानदान का 10 लाख रुपए तक का खर्चा जो है उस कार्ड के ऊपर हुकूमत बर्दाश्त करेगी। जो हमने वादे किए थे वो वादे जो हैं वो सिर्फ कागज पे लिखने के लिए नहीं किए थे। ये मरगल एवेन्यू भी बन रही है, अस्पताल भी बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं, ब्रिज भी बन रहे, फ्लाईओवर भी बन रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला या वो वादे पूरे हो चुके हैं या इस 5 साल के मुकम्मल होने से पहले पूरे कर दिए जाएंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं माजी की पॉलिसियों को रद्द करके हमने मईशत को बचाया, नून लीग की पॉलिसियों पर रहते तो मुल्क तबाही के धाने पर ठहर जाता। कोरोना के दौरान शहबाज शरीफ लंदन से आए तो कहा पाकिस्तान बंद कर दो। शहबाज शरीफ पहले भी गलत थे और आज भी मईशत के हवाले से गलत हैं। 2018 में हमने मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों का तसलसल जारी रखा होता तो अक्टूबर या नवंबर 2018 में मुल्क ने डिफॉल्ट कर जाना था। तो इनकी पॉलिसियों को रद्द करके हमने मईशत को बचाया, फिर उसका ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। कोरोना में जब ये आए तो लंदन से ये एक नुस्खा लेके आए कि हर चीज़ बंद कर दो, और अगर हमने वो कर दिया होता तो आज पाकिस्तान में जो महंगाई है उससे 3 गुना ज़्यादा या 4 गुना ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा महंगाई होती। तो उस वक्त भी कायदे इस पर इख्तलाफ गलत थे, और आज कैसे गलत हैं ये मईशत के ऊपर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ। महंगाई इसलिए नहीं बढ़ रही कि हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी है कि जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। महंगाई इस वजह से बढ़ रही है कि आलमी मंडी में हर चीज़ की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि आलमी सतह पर महंगाई के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मुश्किल हालात से निमटने और आवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए कोशिशें कर रही है। सऊदी अरब से $3 अरब मौसूल हो गए हैं, जिससे रुपए पर दबाव कम होगा और उसकी कदर में इजाफा होगा। ये जो आलमी महंगाई का जो इस वक्त तूफान सर पे आया हुआ है, इसको किसी तरह निकालना है, गुजारना है। और हम जो अब आलमी मार्केट में आपने देखा होगा पिछले 1 हफ्ते से कीमतें भी नीचे आना शुरू हो गई हैं, तो हम माशाल्लाह कामयाब हो गए हैं। अभी आपसे बात हो रही है तो एक और खबर भी आ गई कि सऊदी अरब के $3 अरब भी जो है स्टेट बैंक ने मौसूल कर लिए हैं। तो इसकी वजह से हमारे ज़खायर की तारीखी हो चुकी है। तो ये जैसे ही आलमी मार्केट का जो प्रेशर निकलेगा, आप देखेंगे कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम भी आएगा, और अगर अपनी बरामदात बढ़ी तो मजबूत भी होगा, जैसे हमने 2 साल में पिछले कई दफा देखा है ये सूरत हाल को। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि MTM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं कि सिंध असेंबली में अपोजिशन को बात भी नहीं करने दी गई। सिंध हुकूमत पूरे सिंध को मोइंजो दड़ो बना चुकी है। कराची की रौनकें बहाल करने के लिए सड़कों पर आना होगा। लोकल बॉडीज के हवाले से इन्होंने जब बिल असेंबली के अंदर पेश किया तो तमाम रूल्स ऑफ बिजनेस को इन्होंने मुअत्तल किया और किसी को बात भी नहीं करने दी और अपनी मनमानी करके इस बिल को पास करा दिया। हम अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इनके सामने अगर दीवार नहीं खड़ी की गई, बंद नहीं बांधा, तो जैसा कि खुरम भाई ने कहा कि ये पूरे अंदरूने सिंध को तो ये मोहनजोदड़ो बना चुके हैं। अगर इस शहर की रौनकों को बहाल रखना है तो फिर इसके खिलाफ हम सबको मुनज़्ज़म होकर रोडों पे भी आना पड़ेगा, इसके खिलाफ एहतजाज भी करना पड़ेगा। PTI रहनुमा खुरम शेर जमान कहते हैं आज तक समझ नहीं आया कि मेयर कराची के पास क्या इख्तियारात होंगे। सिंध हुकूमत तो वैसे भी लूटमार कर रही है। सिंध हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। PTI 19 दिसंबर को कराची में एहतजाज करेगी। जो मेयर के इख्तियारात थे वो बढ़ाने से और ज़्यादा इन्होंने कम कर दिए हैं। जो हमारे फॉर्मर मेयर थे वसीम अख्तर साहब, हमने देखा कि 4 साल का उनका अरसा जो है इस बात में गुजरा और बार बार वो कहते रहे कि ना मुझे इन्होंने इख्तियारात दिए, ना इन्होंने वसाइल दिए। ये जो मेयर आने लगा है, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल आगे मंजूर तो उन्होंने कर लिया और इसके अंदर ये तब्दीली नहीं करते, तो ये मेयर ना तो फाइनेंशली एम्पावर्ड होगा, ना तो कोई पॉलिटिकली एम्पावर्ड होगा। इनकी नीयतें क्या हैं? क्या मकसद सिर्फ वही पैसा बनाना है, लूटमार करनी है? तो लूटमार तो आप वैसे भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक पेज के ऊपर आके खड़े हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 19 तारीख को कराची में एहतजाज करेगी। सिंध के वजीर इत्तला सईद गनी कहते हैं कि 66 लाख टन गंदम का हिसाब दिया जाए। 66 लाख टन गंदम PTI के ATM ने गायब की। चीनी बहरान में मुलविस माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? अच्छे गंदम एक्सपोर्ट करते हैं, खराब गंदम इंपोर्ट करते हैं। तो जवाब चाहिए
اس 66 لاکھ ٹن گندم کا جس کا اظہار فخر امام نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کیا تھا کہ مجھے نہیں پتا 66 لاکھ ٹن گندم کہاں چلی گئی ہے. آپ کو نہیں پتا, آپ کے بڑوں کو پتا ہے. یہ گندم جو پی ٹی آئی کے اے ٹی ایمز ہیں انہوں نے غائب کی ہے. چینی کے کرائسس میں اور چینی کی قیمتوں کو بڑھانے میں جو مافیا ملوث تھا وہ کہاں ہے, اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی ہے. گندم آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے, یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. پھر گھٹیا گندم, سستی گندم جو ہوتی ہے اس کو مہنگے داموں پہ یہ پھر امپورٹ کرتے ہیں.